Courage does not always roar. Sometimes courage is the little voice at the end of the day that says, I will try again tomorrow. On this positive note, a very invigorating morning to all the beautiful people who have joined us now and watching us live on this Cancer Awareness Live talk show on the occasion of World Cancer Day. And I, Mamta Sharma, And I, Ayushi Sharma, would like to offer an astounding welcome to all our viewers. आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार और स्वागत है हमारे लाइव कैंसर अवेयरनेस शो पर. On behalf of St. Edmunds, we welcome on our show a wonderful panel of two brilliant minds, Dr. Lalit Mohan Sharma and Dr. Jyoti Joshi. Also, to represent the Student Council, we have two sparkling gems with us. Good Yes, morning, Parth. everyone. I'm Good morning, Parth of everyone. 11th Science. And I'm Niharika Meena of 11th Science. Welcome, both of you. And these brilliant panel will enlighten us about the disease cancer and help us to raise public literacy and understanding about this disease, reduce fear, increase awareness, dispel myths and misconceptions, and change behaviors and attitudes. And for the same, let us welcome a very eminent and gentle personality in this field. He is none other than Dr. Lalit Mohan Sharma. He has an experience of 20 years in the field of cancer treatment. He is trained at AIMS Delhi and Tata Memorial Center, Mumbai. He has received fellowships from top European and American cancer organizations. He has received Best Oncologist Award from government and non-government organizations in Rajasthan several times. His major focus and area of interest is cancer prevention and its early diagnosis. Recently, he has also been awarded a fellowship in cancer prevention from National Cancer Institute, Maryland, USA. He has delivered health talks to more than 50,000 students and 40,000 factory workers. Wow. With ardent pleasure, we welcome you, sir, to our show. And I would like Thank to you. Thank you offer so much. an inclusive welcome to the lady who battled against all odds. And she is none other than Dr. Jyoti Joshi ma'am. She has reached the pinnacle of success with all these odds, fighting all these odds. And मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर ज्योति मैम राजस्थान की illustrious personalities में से एक हैं. She is working as coordinating officer in Education Department, Government of Rajasthan. She is gold medalist in sociology and बहुत ही विख्यात उद्घोषिका है that is anchor and she anchors various national and international events organized by government of Rajasthan. Independence Day, Republic Day are few of them. And a milestone in anchoring was achieved when she anchored in 19th Commonwealth Games that was organized in New Delhi. She is visiting faculty in Rajasthan Police Academy and members of ethics committee in Bhagwan Mahavir Cancer Hospital and Research Center. It doesn't end here, guys. She is a very well-known writer also. She's written a book for which, if you want to explore her writing skills, you can read the book Pigla Hua Man, where you can explore that. But most importantly, she is a fighter. She is a cancer survivor who handled herself so well during her hard times. It's commendable. We welcome you, ma'am. Both our guests today are highly passionate about uplifting the downtrodden, alleviate ignorance by conducting awareness drives, infuse hope among people. Undoubtedly, they are living proof of an exemplar of humanity. We are fortunate to have you with us today. Okay, so as you all know, today is World Cancer Day. So, Ayushi ma'am, do you know why World Cancer Day is celebrated on this day? Of course, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी that World Cancer Day, which originated in the year 2000, is one initiative under which the entire world can unite together in the fight against cancer. It is mainly intended to increase the global awareness about cancer. So, do you know what is the theme for this year's cancer? Yeah, I know. This year's cancer theme is Close the Care Gap, and it recognizes the inequalities in cancer care around the globe. This is the year to listen to perspectives of the people living with cancer and their communities and let their lived experiences guide our thoughts and actions. And I think today we are very fortunate to have the best people to guide us on this subject. So, without any delay, let's welcome Dr. Lalit Mohan Sharma to enlighten us with his knowledge and wisdom.
Thank you so much, Mamtaji, and thank you, Ayushi for your kind words and the very robust, energetic, and urjavan introduction for this topic. I'm really Thank you, glad. sir. And whenever I go and talk to school kids, I'm too much energetic. I always feel that the youth brigade is one of the most energetic resource in the country. And if we can teach and train the youth, probably half of the job will be done. In fact. So thank you so much for the kind introduction. I am thankful to St. Edmund's School Management, learned faculty, and my dear students for giving me an opportunity and talk to you about this complex, difficult topic. Many times, even people don't want to listen the name cancer. लोगों को लगता है कैंसर का नाम मत लीजिए. Whenever we see a patient, the family members come to us, सर पिताजी को मत बताना, माताजी को मत बताना कैंसर है. So people don't want to discuss even, and that is leading to major problems of delay in diagnosis, delay in seeking the medical care. So today's theme by UICC, International Union Against Cancer Control, which is one of the top NGOs based in Geneva, and the main theme this year is close the care gap. It means there is a gap in the care of cancer patients, and the gap stands true for international level, national level, at our own Rajasthan level. So the main area of focus for next 3 years will be to reduce the gap in cancer care, and it is felt that each individual has got a right to take right treatment for cancer, irrespective of the caste, religion, financial status. So this is the major theme. And if you see the data that why we are worried about cancer, why do we need to celebrate the cancer each year and to generate awareness, we see cancer is one of the top leading cause of death in modern world. This is amongst Okay. the top 4 non-communicable diseases. I'll discuss in later that what are the other diseases. So this is one of the top leading cause of death. Fortunately, many of the cancers, they have a relationship to our lifestyle. So it is very important that we all understand what lifestyle factors affect the cancer causation and how can we fight against those and prevent cancer, because prevention is the best cure for most of the diseases. If you see world data globally, we are seeing lakhs of cancer cases each year diagnosed, and death also is happening. In India, if we see close to 14 lakh new cancer cases are diagnosed each year, and the WHO and UICC estimates suggest that this is going to be double by the year 2015. So it means we will be having much more cancer cases than what we are having today. We Oh cannot God. sit silent. There are a lot Yes. of deaths happening in cancer patients. So close to 4 lakh or 5 lakh deaths each year we are seeing related to cancer patients' death. So this has got a very, very high public health importance. What we can do something to prevent. I'll discuss that part, that what steps can we take to prevent the cancer. Absolutely. Awareness, literacy remains the topmost thing. And our main focus today will be to make you all kids, make you all students aware about cancer, how it happens, what it does, how it leads to spread in various organs. So I think we will go in flow. But again, the major aim is that more than 50% of cancers have got strong association with our lifestyle. We call it lifestyle factors. And Absolutely. beginning of these lifestyle factors, it starts in the young age, when the child is teen age, when the student is in 6th class, 5th standard or 7th standard. During that, most of the addictions, most of the bad part of life starts. We observe that the tobacco usage is maximum start is between 11 to 17 years. So that is the student is in the 5th or 6th standard. The youth is tempted to test everything new. So if he or she sees the elder persons having smoke, having take Yeah, alcohol, they they also try are to tempted. copy. Yeah, so they copy. And unfortunately, our film star role models, they also promote many of these products. True. May not be directly, but they also promote all these products. So it becomes Very very, true. very Very true. important and vital for us to understand that what is good for us, what is not good for us. So we will keep flowing in next session. And thank you so much once again. Thank you so much, sir. Thank you for those enlightening words.
अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी सम्माननीय अतिथि डॉक्टर ज्योति जोशी मैम को। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने अनुभवों को हम दर्शकों के साथ शेयर करें। ओवर टू यू मैम। सभी को नमस्ते। और सबसे पहले मैं डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी, उसके बाद ही अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन्हें हो शक वो करें और खुदाओं की तलाश, हम तो इन डॉक्टर्स को ही दुनिया का खुदा कहते हैं। ऐसे प्रेरणा पुरुष मेरे जीवन में मिले और जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। स्कूल परिवार से जुड़े हुए सभी प्रबंध कार्यकारिणी के लोगों को, उनके बच्चों को, उनके पालकों को नमस्कार। मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं वहीं से शुरू करती हूँ जहां से ये शुरुआत हुई थी। 5 साल पहले अचानक मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। निराशा, भय, कुंठा, और एक शब्द है जो आपने सुना होगा, वज्रपात। ये शब्द भी शायद बहुत छोटा है उसे अभिव्यक्त करने के लिए, जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे कैंसर है। बहुत डर गई थी मैं, बहुत घबरा गई थी मैं। लगा कि सामने उफनता समुद्र है और उसकी लहरें मेरी तरफ आ रही हैं, मैं इसमें डूब जाऊंगी, मैं नहीं बच पाऊंगी। उस वक्त मैंने अपने ईश्वर को याद किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे ईश्वर, दुनिया में इतने सारे लोग थे, मेरे ही साथ ये सब क्यों? कोई उत्तर नहीं दिया उस वक्त मेरे ईश्वर ने मेरे इस क्यों का। लगा कि ये उफनता समुद्र है, इसमें डूब जाऊंगी, मैं नहीं बच पाऊंगी। लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे में मेरी सर्जरी हुई। 3rd स्टेज कैंसर था मुझे। सर्जरी के बाद कीमो, रेडियो, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि डॉक्टर साहब मुझे माफ करेंगे कि सर्जरी, कीमो, रेडियोथेरेपी, ये तो सब चिकित्सकीय अस्त्र शस्त्र हैं इस बीमारी से लड़ने के। लेकिन इस बीमारी से लड़ने के लिए असली योद्धा जो होता है वो होता है आपका मन। और जब आप अपने इस तरह संकल्प के रथ पर सवार होते हैं तो फिर कोई आपको हरा नहीं सकता। जब कीमोथेरेपी होती थी, रेडियोथेरेपी होती थी, डॉक्टर साहब ने मुझे देखा है किस दौर से मैं निकली हूं। लेकिन उस समय घबराएं नहीं और उसका सामना करें। लेकिन आज जिस बात के लिए हम चर्चा करने बैठे हैं वो चर्चा है कि हम इस बीमारी से ग्रसित ही ना हो, अपनों को पहले ही कैसे बचा लें। उसके लिए डॉक्टर साहब अभी बहुत सारी बातें हमें बताएंगे कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है अपनों को बचाने के लिए। आप में से शायद ही कोई लोग ऐसे होंगे, शायद ही कोई घर ऐसा होगा जो हमारे साथ आज जुड़े होंगे जिनके घर से किसी अपने को ना खोया हो। मैंने भी बहुत सारे अपने लोगों को खोया है। उसमें मेरा इकलौता भाई है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी यादें जहन में आज हैं। और पहले तो बहुत बुरा लगा कि ये कैंसर मुझे ही क्यों, लेकिन आज मुझे उसका मतलब समझ में आता है कि ईश्वर ने मुझे ये कैंसर क्यों दिया, क्योंकि मैं और लोगों के लिए प्रेरणा बन सकूं और लोगों के लिए सहयोगी बन सकूं। और उसमें मुझे सहयोग किया है डॉक्टर ललित मोहन शर्मा और आप जैसे कई डॉक्टर्स ने। बहुत सारी परेशानियां मेरे साथ हुई। ये कैंसर, शायद मुझे लगता है इसके बाद और भी कुछ परेशानियां बाकी हैं, लेकिन मैंने इसके साथ लड़के सीख लिया है कि किस तरह मुझे आगे बढ़ना है। मैं छोटी सी कहानी, शायद 1 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। बहुत सालों पहले जब मेरी शादी हुई
तो 1 महीने बाद मैंने अपने इकलौते भाई को ब्रेन ट्यूमर से खो दिया। जब मेरा बेटा 4 साल का हुआ, एक बेटा था, तब मैंने अपने हस्बैंड जो साइंटिस्ट थे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में, एक एक्सीडेंट में उनको खो दिया। उसके बाद जब मेरा, और उस समय जब मेरी बेटी थी 20 साल की, 20 दिन की, मेरी गोदी में 20 दिन की बेटी थी, और जब मेरा बेटा 16 साल का हुआ तो एक एक्सीडेंट में मैंने उसको भी खो दिया। और उसके बाद 4-5 साल पहले डॉक्टर साहब साक्षी हैं, इस 3rd स्टेज कैंसर की लड़ाई को मैंने लड़ा है और उसमें सहयोगी रहे हैं आप सब। ममता, शायद मैं यही अपनी बात खत्म कर दूं तो बेहतर होगा। और भी बहुत सारे लोग, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातें करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैम। मैम, हम आपको सल्यूट करना चाहेंगे। एक्चुअली बहुत ही विल पावर की जरूरत होती है कैंसर से लड़ने के लिए। So, very thank you to you, Jyoti ma'am. So Mamta ji, in between, can I share my experience? ज्योति जी का कीमोथेरेपी हमारे पास चल रहा था। उनको कीमोथेरेपी के असर से मुंह में बड़े बड़े छाले आ गए थे एंड शी वाज नॉट एबल टू स्पीक। तो इनको बोलने में इतनी परेशानी थी कि हम कहते थे आप रेस्ट करो, एंटीबायोटिक्स हैवी चल रही थी, मुंह से कुछ नहीं ले पा रही थी, और आईवी फ्लूइड, ग्लूकोज और ड्रिप पे शी वाज थे। उसी समय पे एक नेशनल अपना स्टेट का फंक्शन था, प्रोबेबली 15 अगस्त था, एंड ज्योति जी जिद में थी कि मैं उसमें अनाउंसर जाऊंगी और मेरा जाना जरूरी है। एंड हमने काफी मना किया, बट मना करने के बाद भी इन्होंने मॉर्फिन इंजेक्शन लगवाया एंड इन्होंने जाके वहां अनाउंसमेंट पूरे फंक्शन की कंपेयरिंग करी, एंड प्रोबेबली दैट वाज द बेस्ट कंपेयरिंग शी हैज डन एवर। सो जो जोश और जज्बा देखते हैं वो हमने साक्षात देखा हुआ है। एंड वी ऑलवेज फील कि इनके लिए कैंसर सर्वाइवर वर्ड बहुत कमजोर लगता है। आई डोंट लाइक द वर्ड सर्वाइवर, आई लाइक द वर्ड फाइटर। कैंसर, यस, कैंसर विजेता है एक्चुअली। एंड हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे पेशेंट्स यदि मिलते हैं सो हमको भी बहुत एनर्जेटिक खुद को लगता है। अदरवाइज कैंसर इज लिटिल डिप्रेसिव ब्रांच। एंड अब भी ये जब भी इनको फोन करते हैं, किसी भी पेशेंट को नया डायग्नोसिस कैंसर का जब होता है, हम ज्योति जी का नाम और नंबर उनको लिख के देते हैं। ये चाहे रात में 10 बजे उनसे मिले, बट शी मेक श्योर कि कोई अलवर का, भरतपुर का, गंगानगर का कोई भी पेशेंट बाहर का भी है, वो इनसे मिले, इनसे मिलके वो कैंसर रिलेटेड, बिकॉज इनको साक्षात देखता है, देन नोबडी कैन बिलीव कि कैंसर हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। हर एक को एनर्जी आती है, जोश आता है, एंड दैट strength, inner strength is most important in fight against cancer. Absolutely right, sir. Very true. So Mamta ma'am, this topic is such that many of us have so many misconceptions and questions regarding Right. You got it right. I mean, our students and viewers, see, they are waiting to ask their questions. So I think we should take up their questions and let's proceed ahead. Over to you, Yes. Parth. So, sir, I would like to ask question from Dr. Lalit Mohan, sir, that are children Yes. prone to cancer? And if yes, ये जनरली किन उम्र वाले बच्चों को ज्यादा होता है? So पहला सवाल, are children prone to cancer? Yes, children are having cancer, and roughly in any hospital setting we see total volume, if we see, of cancer patients, between 3.5 to 5% of cancers do happen in children. Exact regions are not known. Most common cancer age is not in fact one particular subset. If you see, blood cancer is one of the commonest thing. We call it leukemia. Leukemia is leuk is white and the mia is cells. So leukemia is white cells, they rapidly increase and proliferate, and that leads to cancer. So leukemia, acute lymphoblastic leukemia, is one of the commonest. Other than that, we are seeing brain tumors, we are seeing lymphomas, and there are various other 7-8 varieties of common cancers in pediatric practice. And even the cancer may happen when the child is in utero, when the baby is developing in the uterus. At that time also neuroblastoma and few cancers have been documented. And exact reason why the child develops, because the child does not have any risk factor, why it develops is still a mystery. But the good point about childhood cancer is that it is highest curable cancer.
We have various schemes in various hospitals for treatment, free treatment for childhood cancers, and the maximum success is in childhood cancers. Okay, which means children are also actually prone, right? It's not Children like are it's prone, and happening. yet the factors which are getting, in fact, more in recent, say, etiology. We call etiology means why one develops cancer. So the Mm-hmm. modern generation, like we have seen the tobacco uses, the tobacco use Mm-hmm. starts in early Right, childhood. right, So even right. many scientists and the FDA commissioner of US Uh-huh. government, they call Right. it that nicotine addiction and tobacco addiction is a pediatric disease because it starts its roots in the child. So many Okay. things, their root starts in childhood and the cancer Mm-hmm. happens in later life. So Okay. this is common. Okay. Yes, Niharika. Now, I would like to ask from Dr. Jyoti Joshi ma'am, at what age were you diagnosed with cancer and आपको क्या symptoms दिखाई दिए थे? निहारिका, आपकी आवाज थोड़ी सा जोर से आप बोलेंगी तो मैं समझ पाऊंगी. Okay, ma'am. I will say again. At what age were you diagnosed with cancer and आपको क्या symptoms दिखाई दिए थे? 48 May I repeat की again? एज में मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ और सिम्टम्स मुझे कुछ भी नहीं थे. मैं ये बताना चाहती हूँ कि 3rd स्टेज में कैंसर मेरा पहुंच गया था, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, मुझे कोई फीवर नहीं, मुझे कोई कमजोरी नहीं थी. मैं आराम से अपनी वॉक और सब करती थी. तो एक Okay. फिटनेस सेंटर पर मैं गई थी कि मैं और ज्यादा फिट हो जाऊं, और वहाँ कुछ स्टीम और मसाज का ऐसा था. ममता, विश्वास नहीं करेंगे, 17 या Mm-hmm. 18 साल की एक बच्ची थी जो मेरी अच्छा. मसाज ले रही थी. उसने Okay. जैसे ही एक लंप मेरे ब्रेस्ट में महसूस किया, उसने कहा हाँ कि हाँ आपने किसी गायनी के डॉक्टर को दिखाया है मैम? आपको यहाँ पे हाँ. मुझे लंप दिखाई दे रहा है. मैंने उससे कहा कि मैं बहुत ही व्यस्त रहती हूँ और ऑफिस से बहुत मुश्किलों से समय निकाल कर यहाँ पर आती हूँ. तुम इन बातों में मत मुझे उलझाओ, और ऐसी कोई बात नहीं है. दूसरे दिन अच्छा. फिर जब उसने मसाज लिया तो उसने कहा कि मैडम, आप अगर कल डॉक्टर को दिखाकर नहीं आएंगी तो सॉरी, हम्म. मैं आपका मसाज नहीं ले पाऊंगी. आप प्लीज डॉक्टर को दिखा के आइए. मैंने उससे कहा कि सैटरडे और संडे मेरा ऑफ होता है, मैं आराम से दिखा हम्म. लूंगी, अभी मुझे हम्म. वक्त नहीं है. विश्वास नहीं करेंगे, तीसरे दिन जब मैं ऑफिस में अपने काम में बहुत व्यस्त थी, सुबह से 9 बजे से 9:30 बजे से फोन पे घंटियां बजना शुरू हो गई. मैं बार बार काटती चली जा रही थी. मेरी बॉस जो सामने बैठी थी, आईएएस हैं, रश्मि गुप्ता, उन्होंने कहा कि किसका फोन आ रहा है, तुम क्यों नहीं इसे पिक कर रही हो? मैंने राइट. कहा कि मैं उस फिटनेस सेंटर पे गई थी और एक बच्ची है जो मुझे बार बार ऐसा कहती है, इस वक्त में अपने पास वक्त नहीं है, ऑफिस का बहुत काम है. उन्होंने कहा इसी वक्त हम्म. तुम दिखा के आ जाओ, इस टेंशन को दूर करो, इस खत्म करो इसको. मैं उसी समय सही. गाड़ी लेके और दुर्लभ जी हॉस्पिटल गई, और वहाँ डॉक्टर नलिनी साहनी हैं. मैंने उन्हें बहुत कैजुअली ऐसे कि आप फटाफट मेरा चेकअप कर दीजिए, मुझे जल्दी में जाना है. उन्होंने कहा एक छोटा हम्म. सा टेस्ट है, मेमोग्राफी का एक टेस्ट होता है, एक एफएनएससी का टेस्ट है, बहुत छोटा सा, आधे घंटे में आपको फ्री कर देंगे, आप वो टेस्ट ही करवा के जाएं. डॉक्टर साहब ओके. बहुत डिटेल में, शायद कभी वक्त मिला तो इसके बारे में समझाएंगे. मैंने वो जी. टेस्ट करवाया और उसी समय उन्होंने कहा कि आपको कैंसर है. आप विश्वास नहीं करेंगे, पैरों के नीचे कैसे जमीन खिसक गई. उस वक्त लगा कि नहीं, अब इस दुनिया में शायद मैं नहीं रहूंगी. और वो कमजोर क्षण होते हैं, उन बिल्कुल मैम. क्षणों से यदि व्यक्ति निजात पा लेता है तो फिर वो विजेता बन जाता है, शायद जैसे विजेता आप लोग मुझे जैसे आप कहते हैं. जैसे आप जैसे आप हैं. समझ सकते हैं मैम. यस पार्थ. बस और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी उसके So now बाद. I would like to बस ask Dr. So now I would हाँ, like to ask Lalit sir. Sir, could you please tell us the risk factors involved in cancer and what are the warning signs for it? मतलब एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको कैंसर है? Very right, very very relevant and ये very शायद pertinent इसका question. आंसर डॉक्टर साहब दे पाएंगे. जी जी. इनफैक्ट जो कैंसर के कारण हैं वो वी नो अराउंड 50% ऑफ द कैंसर्स आर रिलेटेड टू सम और अदर कॉज, बट सारे कैंसर्स का कारण अभी पता नहीं है.
But if we are able to know these 50%, it is more than enough for us to know as common men. So the most common cause of cancer is tobacco. Whenever we discuss tobacco, it is tobacco, tobacco, and tobacco. And I have done a lot of lectures, seminars for tobacco and its impact, especially in the underprivileged people. Underprivileged is factory workers, daily rickshaw pullers, all those things. So tobacco is one most important factor which contributes to around 35 to 40% of the cancers worldwide. Tobacco may be in the form of smoked, BD, cigarette, hookah, all those things, and it may be a non-smoked tobacco. Non-smoked it, gutka, pan masala, jarda, kheni, all these things are non-smoked tobacco. So this leads to the non-smoked tobacco leads to cancer of the oral cavity, inside the cheek, of jawbone, tongue, palate, throat. All these are affected by the tobacco, which is chewable, which is most popular in North India, in Rajasthan. Other is smoked tobacco, BD cigarette, and the hookah, e-cigarettes. All these leads to cancers of lung and voice box and many other cancers in the body. Right. So And one these, is tobacco, topmost cancer. Other, if you see, other are food has got association with the cancer. Which type of food? The non-vegetarian preference of food. People are Okay. tempted to non-vegetarian food, so that leads to less fibers in the diet. Right. Modern generation, including many students, I'm not sure about your school, but many students, they consume low fiber diet and high fat diet. जितना जितना हम नेचर से दूर जा रहे हैं, वी आर पेइंग प्राइस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिजीजेस. बच्चों में आज भी देखते हैं, मदर्स को ये बड़ी चिंता रहती है कि आज टिफिन में क्या रखूं इसके, बिकॉज द चाइल्ड डज नॉट वांट टू टेक रोटी और पराठा और दाल. द चाइल्ड वांट्स टू टेक समथिंग जो एकदम अनकॉमन डिश बना के मम्मी दे दे. हमारे फ्रिज खोल के देखें, ज्यादातर घरों के फ्रिज में, फ्रीजर में वो मैकेन एंड कई सारी फ्राई करने की चीजें, जो बच्चा जिद करे तो फटाफट फ्राई कर दे हम, दिस इज अवेलेबल एंड दैट इज द सोर्स ऑफ कैंसर एंड Frozen अदर food. प्रॉब्लम. फ्रोजन Okay. फूड, Avoid. जितना जितना एडिटिव्स हम फूड में डालते हैं, से एग्जांपल जो सॉस हम खाते हैं उसकी, आई डोंट रिमेंबर बिकॉज आई डोंट टेक, बट उसकी एक्सपायरी समटाइम्स इज अप टू 2 years, 1 year, 2 year. yeah, So because ऐसी they add चीजें उसमें, preservatives. yes, so they add preservatives, which is not good for us. Say the Okay. God has designed our intestine and our system in such a way that it is absolutely fantastic thing. Nobody, no scientist can make a body like this. Everything is so settled. आप देखें, जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो प्राइमरीली एनिमल्स का खाना है. जो शेर है उसकी इंटेस्टाइन इज वेरी स्मॉल इंटेस्टाइन. शेर का जो साइज है इंटेस्टाइन का, इट इज नॉट वेरी लार्ज, बट ह्यूमन इंटेस्टाइन इज 6 feet. 6 feet क्यों है? टू डाइजेस्ट द फाइबरस डाइट, वेजिटेरियन फूड, दैट इज गुड फॉर अस. हम लोगों का यदि रियलिटी देखें, आज भी हमारी दादी और नानी ब्रेड नहीं खाती. वो कहती ब्रेड गंदी चीज. दे नो इट, दे कांट एक्सप्लेन कि क्या गंदा है, बट दे नो इट कि ये खराब. बट हमारी मॉडर्न जनरेशन देखो तो बच्चे, इंक्लूडिंग माय ओन किड्स, दे डोंट वांट टू ईट जो खाना हम लोग खाते. हर समय they want the fried cake, pastry, pizza, burger, high fat diet. And if you see the McDonald's and Pizza Hut, they have tempting offers also. बच्चे भी कहते हैं पापा Right. 20 रुपए में इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिलती है, ले लेते हैं ना साथ. Yeah, And they that is the come up major. with combos. Yeah, so मैम these को combo. पता है, they come with combos. They Yeah. attract the kids. So It seems in you fact, are attracted. So junk food is the weakness of many of us. yeah, in fact, we always tell that it stays for very short on your lips, but stays forever on your hips. So most of Oh, the yeah. Indians, if you see, they are obese, fat, truncal obesity, सबका पेट आया रहता है, and everyone feels कि थोड़ा बहुत तो चलता है, इतना सा तो सबको चलता है, ये तो कोई डर की बात नहीं है. Right. So the Right. food habits, again, non-vegetarian food, high non-vegetarian diet. Lal mas is very popular in Rajasthan, red meat. So that is also carcinogen for the intestine. Colon cancers are common in Western world, and now they are coming towards the pure vegan diet. आज अमेरिका में आप जाके किसी भी रेस्टोरेंट में बोलेंगे प्योर वीगन डाइट, दे विल गिव यू. बट हम लोग Yes. फैशनेबल होते जा रहे हैं. हम लोग केक, पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर खा के वी फील मोर मॉडर्न, कि ज्यादा मॉडर्न है हम लोग.
Take example of other things, say infections, that is third important cause. So infections में mainly viruses are the cause. Virus में human papilloma virus that leads to cervical cancer, and cervical cancer is topmost cancer in Indian women in rural area. Cervix is the lowermost part of the uterine cavity. जो यूट्रस का नीचे का पार्ट वेजाइना एंड यूट्रस के बीच का है, that is cervix. So cervical cancer is related to human papilloma virus, and that virus infection leads to cancer, and that is 27% of world's total cancer. Cervical cancer is contributed by India, and equal number of deaths also. India has got highest number of cervical cancer deaths. So that is third Oh important God. cause. Fourth comes sedentary lifestyle. सेडेंटरी का मतलब आ गया, हाँ, वी डोंट मूव अराउंड. बिल्कुल हम बिल्कुल. अपनी कार में ही जाना चाहते हैं, और मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि सारा काम यदि पड़े पड़े हो जाए तो इवन द यूथ इज नॉट विलिंग टू जंप, टू डांस, टू टेक करेज. इनफैक्ट हम लोगों के टाइम में हम लोग रोज दौड़ भाग करते थे, खूब दौड़ते थे. अभी धीरे धीरे देख रहे हैं कि यूथ इज मोर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है. यूथ अपना रेस्ट्रिक्टेड है कंप्यूटर में, गजेट्स में, पेरेंट्स अपने काम में लगे हुए हैं. Sedentary lifestyle is one of the important cause for cancer and other non-cancerous diseases. Then comes radiation. That जो radiation है, वो radiation mainly अब तक जो डॉक्यूमेंटेड है वो है जो रेडियोथेरेपी हम देते हैं या एक्सरे जो होती है उनसे. बट अगेन वी डोंट नो, आने वाले टाइम में हो सकता है 10-20 साल में जो हाई वोल्टेज लाइंस जा रही हैं, जितना हम मोबाइल से एक्सपोजर है, जितना लैपटॉप एंड चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे घरों में है, आप रेफ्रिजरेटर देख लीजिए, माइक्रोवेव देख लीजिए, हमारे सबके जो ये सिग्नल्स बड़े हाई आने वाले हैं, 4G 5G 6G, all these are a danger to the humankind. So these are few important things, and 3 to 5% are genetic factors. Genetic means यदि किसी को एक फैमिली मेंबर को कैंसर है तो हो सकता है उसका ब्लड में, उसके जर्म लाइन में ऐसा डिफेक्ट चल रहा हो जिससे कैंसर हो सकने की संभावना उसकी ज्यादा हो नॉर्मली. So that is genetic Okay. factor. So these are major causes of cancer. Second thing you asked me about warning sign, that how can a common man think that this could be a cancer. So we call it caution sign, CAUTION, and caution is, C stands for change in bowel and bladder habits. So अपने घर में कोई भी बुजुर्ग बोले कि मेरे को बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, मेरा पेट साफ नहीं होता है, या किसी को डायरिया हो गया है, so anything over and above the average for that person. समटाइम्स बुजुर्ग लोग किसी की आदत होती है 2 बार जाने की, किसी की 3 बार, बट इफ समथिंग चेंज इज देयर इन द ब्लैडर और बाउल हैबिट्स, दैट कैन बी ए साइन ऑफ कैंसर. कोलोन कैंसर मैनिफेस्ट लाइक दैट. यदि कोई हमारे घर वाले बोले कि लैट्रिन एकदम काली तारकोल जैसी आई, सड़क के डामर जैसी आई, इट मीन्स देयर इज सम ब्लीडिंग इनसाइड द इंटेस्टाइन. किसी को पेशाब में खून आना, यदि अचानक किसी को रहा, यूरिन किया और उसमें ब्लड आया, मेनी टाइम्स वी इग्नोर दैट. हम सोचते एक बार था, मैंने तो रात में ऑरेंज जूस पी लिया था, मैंने अनार का जूस ले लिया था, शायद उससे हो गया. बिकॉज हम लोग हर चीज का एक्सप्लेनेशन और सेल्फ डॉक्टरी बहुत ज्यादा करते हैं राजस्थान में. सो वी डू नॉट टेक ओपिनियन फ्रॉम डॉक्टर. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज ए सोर दैट डज नॉट हील. शरीर में किसी के कोई घाव हो, जो घाव भर नहीं रहा हो विद नॉर्मल ट्रीटमेंट, एंड आफ्टर 4 वीक्स ऑफ ड्यूरेशन, किसी के कहीं मान लीजिए पैर में कोई जख्म हो गया, कोई पैर में कील लग रही है, किसी के हाथ में कहीं कोई वुंड है, नॉन हीलिंग वुंड, इट may transform into cancer. Then comes your uterine bleeding, especially for females. So unusual bleeding, U stands for unusual bleeding. Unusual bleeding is postmenopausal bleeding. पीरियड्स आने के बाद, पीरियड्स जब खत्म हो गए उसके बाद में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, स्पॉटिंग हो जाए, दैट में बी मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर. इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, 2 पीरियड्स के बीच में अनकॉमन ब्लीडिंग हो गई, दैट में आल्सो बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ यूट्राइन और सर्वाइकल कैंसर. Then comes leukorrhea, which is commonest problem in females. Leukorrhea is white discharge per vaginum. So that is commonest problem, much more common than menstrual problems itself. And that can be a manifestation of cervical cancer. So किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है.
जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, वी नीड टू टेक एक्शन, वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। जैसा ज्योति जी को अचानक लंप हुआ एंड शी इमीडिएटली कंसल्टेड a doctor, and because it was detected in early stage, curable stage, so we were able to offer treatment. So this is another thing, that thickening or lump, T stands for thickening or lump anywhere in the body, especially breast lumps are very very common. जितना यंग एज में ब्रेस्ट लंप होता है, चांसेस ऑफ कैंसर आर वेरी वेरी लो। जितना एज बढ़ने के बाद में ट्यूमर्स होता है, द चांसेस ऑफ कैंसर आर वेरी हाई। तो किसी को गले में इधर कोई ग्लैंड्स आ गई है, बगल में ग्लैंड्स आ गई है, ब्रेस्ट में लंप है, शरीर के और किसी जगह पे कोई लंप है, दिस कुड बी ए कैंसरस फॉर्मेशन। I stands for indigestion. So indigestion is difficulty in swallowing it. So यदि किसी को ऐसा लगे कि खाना खाने में, निगलने में दिक्कत आ रही है, अपने घर वाले यदि कोई ये बोले आपको कि मेरे को खाना सूखी सब्जी और रोटी के साथ खाने में दिक्कत आ रही है, मैं दाल दलिया खिचड़ी ऐसी चीज के साथ में खाना खा रहा हूँ, यदि ये लगातार रह रही है, इट मे बी मैनिफेस्टेशन ऑफ फूड पाइप कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, जिससे खाने में रुकावट आ रही है। देन कम्स नेगिंग कॉफ। कॉफ इज दैट लगातार किसी को 4 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रही है जो ठीक ही नहीं होती साधारण दवाई से, इट कैन बी ए मैनिफेस्टेशन ऑफ लंग कैंसर। एंड देन कम्स किसी भी शरीर में कहीं अपना तिल है, मोल है, उसके इरेगुलर मार्जिन्स हो जाए, उसका साइज अचानक बढ़ जाए, उसमें ब्लीडिंग हो जाए, दैट कैन बी ए मैनिफेस्टेशन ऑफ malignant melanoma we call it. So these are common warning signs. Most important thing, जैसा ज्योति जी ने प्रॉब्लम होते ही तुरंत उसको दिखवाया, ऐसा हमें अपने शरीर के बारे में खुद को जानकारी होनी चाहिए, and we should know our own body. Yeah, right. So we need to be very cautious about the early diagnostic. True. मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि यदि आपको थोड़ा सा भी कोई आपके डॉक्टर यदि कैंसर के डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कहते हैं, या आपको थोड़ा सा भी जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया व्यक्ति की ये होती है कि कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर के डॉक्टर्स नहीं, वहां नहीं जाना है, वहां जाने का मतलब मौत है, ऐसा लोग सोच लेते हैं। लेकिन उससे घबराना नहीं है। जैसे ही आपको पता चलता है, आप सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो शायद जितना जल्दी हम इस चीज को क्लैरिफाई कर लेते हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। पर पहली प्रतिक्रिया ही व्यक्ति की ये होती है। कई बार डॉक्टर साहब तो इस चीज के बहुत मैंने देखा है, डॉक्टर साहब के पास जैसे पेशेंट आते हैं, पता भी चल जाता है कि कैंसर है। कई पेशेंट तो शायद इलाज के आर्थिक अभाव में, डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं कि कल से आते हैं और कल से हम ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद शायद वो कभी भी अपने बच्चे को लेकर या अपने घर के किसी व्यक्ति को लेकर वापस वहां नहीं आते। I think that is very true. Very expensive and India में गरीबी के कारण प्रॉब्लम्स तो बहुत मुश्किल है। Yes, no, Ayushi ji and Mamta ji, I will in fact interrupt you here. इंडिया में एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में माइंडसेट जो है हमारा वो गड़बड़ है। एंड खासतौर से हम देखते हैं अब तो जैसे गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम चला रही है, अभी इतना स्कीम्स है दैट ईच फैमिली हैज गॉट ए 5 लाख रुपीज मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद भी दे डोंट कम फॉर चेकअप, उसके बाद भी दे डोंट स्टे फॉर द ट्रीटमेंट कराते हुए बीच में भाग जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड बिकॉज ऑफ मिथ, एंड जो बाकी लोग जो उनको समझा देते हैं दूसरे, एंड एक निगेटिव अप्रोच है। हर आदमी ये मानता है कि कैंसर होने के बाद तो कोई बचता नहीं, डॉक्टर तो अपना बिल बना रहे हैं बैठ के, इनको कोई मतलब नहीं। सो पीपल हैव गॉट दैट माइंडसेट। इसी मिथ को बस्ट करना है सर आज इस अवेयरनेस शो से। यस, दैट इज वेरी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे यदि बच्चे ये चीज समझ जाएंगे कि पहली चीज कैंसर क्यूरेबल है, और दूसरी चीज अर्ली डायग्नोसिस इज द की टू सक्सेस। नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को हो भी गया तो अर्ली डायग्नोसिस इज द की टू सक्सेस। तो अर्ली डायग्नोसिस तब होगा जब हम डॉक्टर के पास टाइम से लेके जाएंगे और डॉक्टर की राय जो बताए वो हम मानेंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी कि आपने खान पान के बारे में बताया, हमें उसका ध्यान रखना है, लेकिन कई लोग जब कैंसर डायग्नोस हो जाता है
उसके बाद सोचते हैं कि सर्जरी, कीमो, रेडियो इस तरफ नहीं जाना है और झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और इस तरह की देशी दवाइयां कई लोग उन्हें सजेस्ट कर देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। भारत में जितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उससे कई गुना ज्यादा क्वैक्स बैठे हुए हैं हर गली में, हर नुक्कड़ पे। इवन मेरे बगल में भी, आप सोचे, जयपुर राजस्थान की राजधानी, जयपुर टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेस है, और मेरे बगल में भी एक बाबा बालकनाथ का एक अड्डा चलता है। तो बाबा की भी 2 बार इतनी भीड़ होती है कि मुझे भी जेलस होती है कई बार कि बाबा में ऐसी क्या प्रसिद्धि है कि इतने सारे गाड़ियां खड़ी है, स्कूटर खड़े हैं। लेकिन यू कांट कंट्रोल दैट। And we- हमारी जरूरत Yes, है कि yes. हम खुद चौकन्ने रहें। 100% को हम ठीक नहीं कर सकते, बट हम खुद यदि अपने आप को, अपने परिवार को सुधार लें तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। Absolutely. बहुत ये बहुत सही। निहारिका, डू वी हैव मोर क्वेश्चंस? yes, 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 ma'am. Niharika. Yes, Niharika. So I would like to ask Dr. Jyoti Joshi, could you please tell us about the treatment and did you face any obstacles during the treatment and आपने अपनी बाधाओं को कैसे मैनेज किया and कैसे ओवरकम किया? ट्रीटमेंट तो सारी प्रक्रियाएं मैंने झेली हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है। एक सर्जरी जैसी सर्जरी होती है, और भी बहुत सारी सर्जरी होती है, लेकिन कैंसर उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसे भयाक्रांत मान लेते हैं। कीमोथेरेपी, जो एक लोग सोचते हैं कि कीमोथेरेपी यानी कोई नारकीय यंत्रणा दी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से हमें इंजेक्शंस लेने होते हैं और मेडिसिन लेनी होती हैं और बीमारियों के लिए इस तरह के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ये बात सही है कि उसके थोड़े से साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको अल्सर हो सकते हैं, आपको भूख लगना बंद हो सकता है, आपको नींद आना कम हो सकता है, ऐसी थोड़ी सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें लेकिन एक समय के रहते होती है। जब तक आपका 6-8 महीने ट्रीटमेंट चलता है, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती है। तो थोड़ा सा वक्त है, उस समय पेशेंट को धैर्य रखने की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, जिस पेशेंट के साथ उसके घर के लोग, अपने लोग जब साथ होते हैं तो वो हर जंग को जीतने की क्षमता रखता है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। वो थोड़ा सा समय था। मैंने एक बात और कहना चाहूंगी कि जब किसी का ऐसा ट्रीटमेंट, एक हॉबी आपके पास जरूर होना चाहिए। चाहे वो कैंसर की तकलीफ आए या कोई और बीमारी की तकलीफ आए, आपके पास कोई हॉबी होती है तो बस आप उसमें इतना रम जाते हैं कि वो चीजें बिल्कुल दरकिनार हो जाती है और वो वक्त निकल जाता है। मैंने बहुत सारी अपने शौक उस समय पाल लिए। ये एंकरिंग का शौक तो मुझे था, जिसने मुझे बहुत ताकत दी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उस समय भी मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने उस समय समझ लिया था कि आज यदि मैं रुक गई तो मैं जिंदगी भर फिर उठ के चल नहीं पाऊंगी। मैंने गार्डनिंग का शौक पाला। उस समय मुझे डॉक्टर बहुत बोलते थे कि आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं इन दवाइयों की वजह से, जो आप कैंसर की जो आपकी मेडिसिन हो रही हैं, आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अपनी ताकत के बलबूते पे मैंने उस समय भी अपने डांस के शौक को बरकरार रखा और बस वो वक्त निकल गया। मैं ममता ममता, जी, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से। बच्चे जी जी इन बातों को सुन रहे हैं। मैंने, जैसा जी कि जी तुमने जी। जिक्र किया था पिघला हुआ मन, तो मैंने हाँ जी एक मैम, कविता इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखी है। यदि बिल्कुल तुम मैम। लोग कहो तो मैं उसे सुना दूं। अरे बिल्कुल मैम, प्लीज शेयर विद अस। आवाज नहीं आ पा रही है आप लोगों? आ रही है हाँ, मैम, आपकी आवाज तो क्लियर है मैम। यू कैन क्लियर है मैम। प्लीज स्टार्ट। आप सुनाए हमें।
आई थिंक ज्योति जी को थोड़ा सा बीच में कनेक्टिविटी का इशू है, सो सर, तो हमारे पास आपके और सवाल हैं यस जो यस हमारे प्लीज मार्क ऑडियंस एंड कंटिन्यूअसली yes. क्वेश्चंस पुट क्योंकि अप कर हमारे रहे पास हैं. we have so many questions in the comment section. So I'll just take one question that what are the general chances of cancer relapse? और इसका क्या रीजन होता है, क्यों कैंसर दोबारा हो जाता है? Right, I think that is very relevant and very big challenge for all of us as treating doctors. So relapse का main reason ये हो जाता है कि when we treat the cancer in advanced stage, then उसकी जो cells हैं वो सारी cells की death नहीं हो पाती है by whatever treatment we are offering, chemotherapy, radiotherapy, surgery. तो कोई ना कोई cells उसकी dormant रह जाती है. Dormant is जो cell खत्म नहीं हुई है और वो एक dormant phase, everybody knows that part. So dormant phase में रह जाती है. That cell can reactivate and can regrow. So that will lead to cancer. Other important part is our immune system is not boosted up. Unfortunately, हम लोग कैंसर का इलाज तो करवाते हैं, बट जिस वजह से कैंसर हुआ उसका कुछ नहीं कर पाते. कैंसर क्यों हुआ? आज यदि मुझे कैंसर है, इसका मतलब मेरे किचन में जो खाना बन रहा है, जिस एटमॉस्फेयर से मैं एक्सपोज हो रहा हूँ, एवरीवन इज गेटिंग एक्सपोज विद द सेम एनवायरनमेंट. हम उसका कुछ नहीं करते हैं. हम कैंसर होने के बाद भी, खासतौर से स्मोकर्स, गुटखा च्यूअर्स, कैंसर होने के बाद भी गुटखा, सिगरेट, बीड़ी वो छोड़ते नहीं. एल्कोहलिक्स अल्कोहल नहीं छोड़ते कैंसर होने के बाद, सिरोसिस होने के बाद. एडिक्शन सो सारों में नहीं है, but many factors are responsible. Main is if we treat the cancer in advanced stage, that is the chance of relapse are very very high. आगे पूछिए और नेक्स्ट. Sir, I have one question for you. Yes, Parth. Sir, does the chemo treatments make a person immunocompromised to COVID or Yes. any other disease? Yes. Does it accelerates or something like that? Yeah, very true. In fact, the cancer itself is immunocompromised state. Anybody having cancer, active cancer, is immunocompromised. Second thing, whatever treatment we offer, this again puts the person in immunocompromised state, further compromised, because cancer का treatment का selective action नहीं. It does not affect only the cancerous cells. It affects the normal growing cells also. So हमारा जो blood की cells है, हमारी lymphocytes है, polymorphs है, blood में ये सारे system में कमी आती है. The cancer cells, cancer treatment affects all the growing cells. बार बार मुंह में छाले आ जाना, हम लोग हेयर कट महीने में एक बार करवाते हैं. हेयर की सेल्स जो है, दे आर ऑल्सो बडिंग एंड डिवाइडिंग. सो द कैंसर ट्रीटमेंट किल्स दोज सेल्स ऑल्सो. एंड सेम थिंग हैपेंस विद द नेल ऑल्सो, कि नाखून हर हफ्ते काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं. सो दीज आर कॉमन थिंग्स. सो कैंसर पुट्स अस इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेटस. एंड यही वजह थी कि जो वैक्सीन का भी है, वी रिकमेंड कि यदि किसी को एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कोविड वैक्सीन का इफेक्ट विल नॉट बी हाई, बिकॉज वैक्सीन इज मेनली अपना शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है. तो जब भी दोबारा इन्फेक्शन होता है, इट किल्स. सो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज है यस ट्रीटमेंट इन कैंसर इट्स. तो जो कोविड वैक्सीन्स हैं वो अगर कैंसर पेशेंट लें तो आई मीन कैन दे टेक दोस वैक्सीन? In fact, patients who are on active cancer therapy, we recommend कि वो avoid करें. Avoid का major reason is that उनमें uptake and the efficacy will not be good, because immunity कम है, तो उनका body respond ही नहीं करेगा in antibody formation. तो इसलिए उनको हम बताते हैं नुकसान नहीं है, but efficacy wise उनका antibody titer देखा गया, then they did not have the sufficient antibody titer. ओके. हमारे पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर आंसर्ड. आवाज नहीं आ पा रही है. आवाज नहीं आ रही है मैम? आवाज आ रही है मैम आपकी? ज्योति मैम, हम आपको सुन सकते हैं. आप बोले मैम, हम आपको सुन सकते हैं. ज्योति मैम, आवाज आ रही है मैम आपको हमारी? I think there is some connectivity issues with Jyoti ma'am's. The connection might be unstable. Good wishes and salute for our doctors today in the comment section. You can check them out later. We are loaded with many comments today. तो आप इसमें से relevant पूछे ना आयुषी जी, if we can answer some of these questions.
Yes, I'll read it out for you. Let me just check the questions. सर एक कॉमन सवाल ये है कि अर्ली स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट हो सकता है. मोस्टली क्या होता है कि यू डिटेक्ट कैंसर ओनली एट थर्ड और फोर्थ स्टेज, जब वो थोड़ा सीवियर हो जाता है एंड वी नो दैट देयर इज समथिंग एक्चुअली वेरी रॉन्ग. तो क्या ये फर्स्ट और स्टेज पे डिटेक्ट हो सकता है? That is very, very relevant question. And in India, we see close to 70% patients are reaching in late stage. Early stage में Right. कैसे पिकअप हो सकता है? We call it screening. So screening is कि आपको और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाके अपना चेकअप करवाएं. So screening तीन cancers की mainly effective है, and these three cancers are number one breast cancer for female, जिसमें जैसा ज्योति जी ने बताया मेमोग्राफी नाम का टेस्ट होता है. After the age of 40 years, once a year, all women should do it. All women should do it, irrespective of whether one is having any problem or not. So that is screening. Second important part about this cervical cancer screening. Cervical cancer is another most common cancer in women. So उसके लिए एक पेप स्मीयर नाम का टेस्ट होता है. वजाइनल फ्लूइड से उसको लेते हैं एंड उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं. So that is also very, very important test. जो pap smear. So these are two important cancer for screening in women, and prostate cancer in men has also got some screening implication. So पहला चीज screening हो गई. So हमें सबको साल में एक बार अपना चेकअप करवाना है. I always tell कि अपना बर्थडे के दिन you should do get it done. तो यदि अर्ली स्टेज में पिकअप हो गया, जैसे ज्योति जी को प्रॉब्लम नहीं थी, इट वाज इंसिडेंटली पिक्ड अप. सो ऐसा यदि हमको खुद पता रहेगा अपने शरीर के बारे में, तो अर्ली स्टेज कैन बी पिक्ड अप. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट देयर इज अ वैक्सीन अवेलेबल फॉर एचपीवी. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन इज अवेलेबल. जैसा कोविड वायरस से होता है, ऐसा सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन इज अवेलेबल बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो मेनली 2 स्ट्रेन उसकी होती है, HPV 16, HPV 18. तो उसका जो वैक्सीन है उसका 2 डोज देते हैं. वन इज टुडे एंड द सेकंड डोज इज आफ्टर 6 मंथ्स. इंडिया में ये कहना कि अर्ली स्टेज पिकअप नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा. हमने कोविड में ये साबित कर दिया है कि वी हैव हाईएस्ट वैक्सीन सक्सेस रेट. सो जब कोविड की वैक्सीन लगा सकते हैं, कोविड पे इतना खर्चा कर सकते हैं, एड्स को आप देखें कितनी प्रायोरिटी मिली है, HIV एड्स को, बट कैंसर को अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मिले. एंड आई ऑलवेज फील कि जब ये एडवर्टीजमेंट जिनका ज्यादा करते हैं, से एग्जांपल ऑफ कोका कोला, अंकल चिप्स एंड अदर चिप्स, द किड्स नो मच बेटर, जब ये गांव-गांव ढाणी-ढाणी में पहुंच सकता है, तो हमारा कैंसर की अवेयरनेस क्यों नहीं पहुंचती? वहां जाते ही लोगों को लगता है कि नहीं हम नहीं कराएंगे, हम तो पता नहीं क्या कर दें डॉक्टर हमारा. It is a taboo. The word yes, itself so is a that taboo. leads to problem. So early detection के ये वाले methods हैं, we should be very cautious. Yes, sir. मैं ये कहना चाहूंगी ममता, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो बच्चे किसी भी संदेश को पहुंचाने का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं. तो बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आपकी मम्मी 40 प्लस हैं, तो उन्हें जरूर आप मोटिवेट करिए और एक बार जो मेमोग्राफी का जो टेस्ट है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, 40 प्लस वाले महिलाओं को जरूर ये टेस्ट करवा लेना चाहिए. तो बच्चे अपनी मम्मी से, अपनी चाची से, अपनी बुआ से, या जो भी लोग, जो भी फीमेल्स हैं, उनसे जरूर कहें इस टेस्ट को करवाने की. ममता जी, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. आई रियलाइज हमने जहां भी कैंसर रिलेटेड टॉक किया, काफी मैं हजारों लोगों को उसकी कैंसर की शपथ ओथ दिलवा चुका हूं कि हम टोबैको नहीं खाएंगे, हम बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं लेंगे. एवरीवेयर आई डिलीवर टॉक, पीपल आर वेरी हैप्पी. डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने टेप लिया, बहुत अच्छा लेक्चर लिया. बट 2-3-4 महीने के बाद में वापस दे रीस्टार्ट. सो आई ऑलवेज फील कि जो बच्चे हैं, वो बच्चा, बेटा या बेटी ऐसी फोर्स है जो अपने पिता के मुंह से सिगरेट छीन सकता है, वो आप और हम नहीं छीन सकते. तो यदि बच्चे इस चीज को समझ जाएं कि पापा ये चीज डेंजरस है, आप मत ऐसा करो, तो द इम्पैक्ट विल बी मच हायर इन द कम्युनिटी, इन दिस सोसाइटी. सो बच्चे हमारी बहुत बड़ी फोर्स है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. और बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बच्चों से रिलेटेड जो कविता मैंने लिखी उसको जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी. इस वक्त बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मेरी जो कविता संग्रह है, पिघला हुआ मन, वो किताब मेरे हाथ में है, और मेरी इस किताब से ही ये कविता मैं अपनी शेयर करना चाहूंगी. मेरी आवाज साफ आ रही होगी? हेलो. यस, एकदम साफ आ रही है.
10 में से 10, मेरी इस कविता का शीर्षक है 10 में से 10। 10 में से 10 नहीं लाता मेरा बच्चा, पहले दूसरे तीसरे की दौड़ में वो नहीं है शामिल। खेलता है, सपने बुनता है, जिद करता है और कर डालता है बातें समझदारी की भी कभी कभी। और हाँ, पढ़ता भी है, पर उतना जितना जरूरी लगे या जरूरत लगे जितनी, कह सकते हैं साधारण है वो। मैं नहीं जाती उसकी टेस्ट कॉपी देखने, मैं नहीं जाती उसकी टेस्ट कॉपी देखने, इसलिए नहीं कि मुझे शिकायत है उससे, बल्कि इसलिए कि कोफ्त होती है मुझे स्कूल की सीढ़ियों से उतरते, साथ नीचे घसीटते बच्चे को इसके उसके अंक पूछते किसी के मम्मी या पापा को देखकर। कितने आए मैथ्स में और कितने साइंस में, कितने आए मैथ्स में और कितने साइंस में। सुन सुनकर तो लगता है कि 3 नंबर जो कट गए वही सब कुछ थे शायद। सुन सुनकर तो लगता है कि 3 नंबर जो कट गए वही सब कुछ थे शायद। मुझे नहीं लगता अच्छा बच्चों के क्लासरूम में देखना सन्नाटा शमशान का। मुझे नहीं लगता अच्छा देखना बच्चों के क्लासरूम में सन्नाटा शमशान का। कॉपियों के ढेर के पीछे बैठी टीचर, कॉपियों के ढेर के पीछे बैठी टीचर और उनके सामने घिघियाते पालक, आपस में 9.5 जैसी गलाकाट बातें करते पगले से पगलाए पालक। बचपन की परिभाषा पर मुंह उकेरे, बचपन की परिभाषा पर मुंह उकेरे, मासूम चेहरों पर टपकती वो आंसुओं की लड़ी। सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, अब की बार की हिचकियां। मुझे नहीं लगता अच्छा जाना उस कसाई खाने में, मुझे नहीं लगता अच्छा जाना उस कसाई खाने में। मुझे नहीं भाता देखना वो निर्जीव कॉपियां, उनमें लिखे रटे रटाए निर्जीव से उत्तर, और कॉपी में आंखें गड़ाए नंबर जोड़ते मम्मी पापा, और कॉपी में आंखें गड़ाए नंबर जोड़ते मम्मी पापा। मुझे तो अच्छा लगता है देखना चिड़ियों के पीछे दौड़ता बचपन, मुझे तो अच्छा लगता है देखना चिड़ियों के पीछे दौड़ता बचपन। दीवारों पर आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच अपने मन को उकेरता बचपन। गली के कुत्तों के छोटे छोटे पिल्लों पर बलिहारी जाता बचपन, और घोंसले में नन्हे चूजों के मुंह में दाना डालती चिड़िया से प्यार सीखता बचपन। How nice, ma'am. Lovely. मैम, आपकी कविता पेरेंट्स को बहुत पसंद आ रही है। दे आर राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन, दे आर लविंग योर कविता। सब लिख रहे हैं मैम, बहुत अच्छा लगा। और देखते देखते आयुषी मैम प्रोग्राम के एंड पे आ गए हैं हम। यस, So, with deep reverence and gratitude, we would like to sincerely thank our guests in the panel today, Dr. Lalit Mohan Sharma and Dr. Jyoti Joshi ma'am, who graced this occasion with their valuable presence and enlightening us today. We take immense pleasure in thanking our management for taking such initiatives and organizing such awareness programs. We would like to thank all the teachers, our Blooming Buds students, parents, and all those who took out their time to participate in this awareness drive. आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आई एम श्योर आप बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स जो क्वेश्चंस थे कुछ कुछ रह गए होंगे, बट यस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। So before leaving, we the Edmondites urge you to spread the word, speak up, and stand up for a future without cancer. Thank you everyone for being a part of this show and making it successful. ममता, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जी के मोबाइल नंबर और मेरे मोबाइल नंबर आप शेयर कर लें, ताकि कई बिल्कुल लोगों मैम। की जो जिज्ञासाएं रह गई होगी, कई लोग जो अपने प्रश्न पूछना चाहते होंगे, इस टेक्निक से नहीं जुड़ पाए होंगे, वो सीधे किसी भी वक्त 7x24 किसी भी वक्त फोन करके अपनी बात पूछ सकते हैं। Absolutely, Thank you ma'am. so much, ma'am. Thank It you, means a ma'am. lot. So at the end, I will also like to compliment both the anchors, Mamta ji and Ayushi ji,
and Parth and Thank you. Niharika for their excellent inputs and Thank you, sir. very well conducted meeting. In fact, such meetings usually we take advantage and we take help from some event management company. In fact, but you all are doing Oh, excellent work. thank you so much. I am thankful to Director Sri Anup Singh ji, Academic Head Sri Dipen Singh ji, and Principal Madam Mrs. Monica Bhatia ji, and all the learned faculty, my dear students and parents, for giving me an opportunity to talk to you for this complex topic. Thank you so much and wish you all the best. God bless you all. Thank you so much, Thank you sir. so much, Thank you so everyone. much, ma'am. Thank you. Namaskar. Thank you. Namaste.